हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस सेशन में हम KLP टेस्ट नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं, फिजिक्स पार्ट। A ball is released from the top of a tower. The ratio of the work done by force of gravity in first second and first 2 seconds to first 3 seconds on the ball is. हम पहले वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालेंगे इन एनी टाइम t, फिर जाके फर्स्ट सेकंड्स, फर्स्ट 2 सेकंड्स और फर्स्ट 3 सेकंड्स का रेशियो देखते हैं कि किसके बराबर होगा। जब भी हम किसी बॉल को रिलीज कर लेंगे, रिलीज करने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 के बराबर है। इट मूव्स डाउन। सपोज इन टाइम t ये यहां पर है, इन टाइम t ये यहां पर है, तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट हुई है s, वो किसके बराबर है? वो किसे? काइनेमेटिक्स से आपको पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट इज सिंपली हाफ ऑफ gt स्क्वायर। Okay, displacement is half of gt. So sy in the y direction, displacement in the y direction is half of gt square. So ये displacement. So work done क्या होगा? सीधे ही हम mg और s का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। mg भी डाउनवर्ड, s भी डाउनवर्ड। Okay, so one dimensional case और mg कांस्टेंट है, फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होगा दैट विल बी mg into sy, सीधे मैं लिखता हूं half of gt square. M is constant, G is constant, half is constant, G is constant, T. So work done by gravity is directly proportional to T squared. Work done by gravity is directly proportional to T squared. अब आपको किस चीज का रेशियो निकालना है? T वैल्यूज क्या लेने हैं? T is equal to 1 second. फिर फर्स्ट 2 seconds का मतलब T is equal to 2 seconds. फिर फर्स्ट 3 seconds का मतलब T is equal to 3 seconds. इनका रेशियो आपने निकालना है। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर्ड, दैट मींस W1 इज टू W2 इज टू W3. W1 is work done in the first second, W2 is the work done in the first 2 seconds, that is 0 to 2 seconds, W3 is work done in the first 3 seconds, that is 0 to 3 seconds. Okay, 0 to 3 seconds is equal to directly proportional to T squared. So पहला 1 है और दूसरा 2 है, तीसरा 3 है, तो 1 square is to 2 square is to 3 square, which is 1 is to 4 is to 9. So W1 is to W2 is to W3 is 1 is to 4 is to 9. 1 is to 4 is to 9. So this is it. This is question number 1. 1 is to 4 is to 9. Option 4. Okay, option 4. Chale, let's move on to the second question. Two masses of m and 9m are moving with equal kinetic energy. So kinetic energy जो है वो same है. The ratio of their linear moments is, linear moments का ratio है. Kinetic energy जो है वो same है दोनों के लिए. So what is the relationship between kinetic energy and linear momentum? Kinetic energy आपको पता होना चाहिए is p square divided by 2m. p square divided by 2m. और P is equal to under root of 2mk. K is the kinetic energy. Okay, K is the kinetic energy. अब इस वाले पर्टिकुलर केस के लिए kinetic energy जो है वो दोनों केसेस में सेम है। 2 तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, सो आई कैन राइट P is directly proportional to under root of m. इस वाले पर्टिकुलर केस के लिए P is directly proportional to under root of m. अब P is directly proportional to under root of m, तो रेशियो जो है वो किसके बराबर होगा? P1 by P2 is equal to under root of m1 divided by under root of m2. डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, तो इसलिए ऑर्डर जो है वो सेम रहेगा, 1 2, यहां से भी 1 2. सो दिस इज इक्वल अंडर रूट ऑफ, रूट को मैं कॉमन ले रहा हूं, m1 के बदले में m, m2 के बदले में 9m, सो ये सिंपली बन जाएगा 1 by 9. So this implies P1 divided by P2 is equal to 1 divided by 3. Root 9 is 3. So this is 1 is to 3. 1 is to 3. 1 is to 3, option 2. Okay, 1 is to 3, option 2. Chale, let's move on to the next one. A mass of 6 into 10 to the power 4 kg is to be compressed in a sphere in such a way that the escape velocity for its surface will be 3 into 10 to the power 8 meter per second. What should be the radius of such a sphere? Use 2 into 6. Okay, ये दिया हुआ है. escape velocity के रिलेटेड है और फिर जाके मास दिया हुआ है, स्पीड, एस्केप स्पीड भी दी हुई है, हमें रेडियस बताना है कि किसके बराबर है. सो इट सिंपली इंप्लाइज कि आपका अर्थ जो है 610 to the power 24 kg अर्थ का मास है, उसको ब्लैक होल बनाने के लिए कितना रेडियस होना चाहिए, उसका रेडियस कितना होना चाहिए.
ओके, वी ऑलरेडी नो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास है √2gm डिवाइडेड बाय r, 2gm डिवाइडेड बाय r। अब एस्केप वेलोसिटी आपको दिया जा रहा है, 2 तो पहले ही पता है, g भी पहले ही पता है, m जो है वो आपको दिया गया है, r आपको निकालना है। सो इट्स सिंपल कैलकुलेशन है। सो पहले तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ve स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm डिवाइडेड बाय r, 2gm डिवाइडेड बाय r। This implies r is equal to 2gm divided by ve squared. Okay, ve squared. अब वैल्यूज जो हैं वो सब्स्टिट्यूट कर लें। ओके, वैल्यूज जो हैं वो सब्स्टिट्यूट कर लें। 2g is 6.67 into 10 to the power minus 11. M mass is 6 into 10 to the power 24, 6 into 10 to the power 24 divided by ve is 3 into 10 to the power 8, लेकिन स्क्वायर है, सो 3 into 10 to the power 8 into 3 into 10 to the power 8। ओके, अब जो आपको दिया गया है 2 into 6.67 into 6 डिवाइडेड बाय 9, 2 उसमें आएगा, 2 ये रहा, 6.67 ये रहा, into 6 ये रहा, डिवाइडेड बाय 9, 3 into 3 is 9, तो ये रहा। सो सभी वैल्यूज इसमें आ रहे हैं, सिर्फ 10 टू द पावर वाले पार्ट जो है वो बच रहे हैं। 2 into 6.67 into 6 डिवाइड बाय 3 into 3 is 9, वो आपको दिया गया है 8.89। सो 8.89 into 10 to the power, 10 to the power, so 10 to the power minus 11, 10 to the power 24, 10 to the power 8 plus 8 is 16, 16 को ऊपर ले लें तो minus 16 बन जाएगा, minus 16 minus 11 minus 16 minus 10 is minus 26 minus 27 minus 27 plus 24 is minus 3 just। सब कुछ SI सिस्टम में था तो यूनिट जो है SI सिस्टम वाला आएगा मीटर्स। अब हमारे पास 10 to the power minus 3 is millimeters, 10 to the power minus 3 meters is millimeters. So 8.89 millimeters. Radius of Earth should be 8.89 millimeters to make it a black hole, to turn it into a black hole, such that its escape velocity is 3 into 10 to the power 8 meter per second. Okay, so let's move on. 8.89 is option 1. Okay, option 1. So question number 4. The correct statement or statements is or are change in kinetic energy of a particle or of a system. अब यहां पर ध्यान देना है particle और system, तो इसमें गड़बड़ ना हो, is equal to sum of the work done by all the forces on the particle or on the system. तो ये तो ठीक स्टेटमेंट है, work kinetic energy theorem, work is equal to change in kinetic energy, work is equal to change in net work done is equal to change in kinetic energy. So work done by all the forces, so net work done is change, तो ये तो ठीक स्टेटमेंट है। We don't have, okay, we have all of them, so हमें बाकी भी एनालाइज करना होगा। A force which is perpendicular to the velocity of a particle can't change kinetic energy of the particle but can change momentum of the particle. ये भी ठीक स्टेटमेंट है। अगर आपको सर्कुलर मोशन जो है वो जहन में हो, ये सर्कुलर मोशन, यहां पर टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, ओके, यहां पर इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल वेलोसिटी, यहां पर इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल वेलोसिटी, और फोर्स जो इन्वॉल्व है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, इफ देयर इज नो टेंजेंशियल फोर्स, ये फोर्स इन्वॉल्व है, तो फोर्स जो है दैट कंटिन्यूज टू बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। और इसमें आपको पता होगा कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल डज नॉट चेंज, सिर्फ इसकी डायरेक्शन चेंज होती है। स्पीड चेंज नहीं होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। सो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, वही ये कह रहा है, परपेंडिकुलर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल कैन नॉट बी चेंज। बट व्हाट अबाउट द मोमेंटम? वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो मोमेंटम भी चेंज हो रहा है। मोमेंटम is mass into velocity is a vector quantity, तो velocity की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो velocity चेंज हो रही है, स्पीड नहीं, स्पीड इज द मैग्नीट्यूड। velocity की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो velocity चेंज हो रही है, which means momentum जो है वो चेंज हो रहा है। so this is a correct statement but can change momentum of the particle. Then third statement, it is possible for a system to have zero momentum but
फॉर ए सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट बात है, फॉर ए सिस्टम टू हैव zero momentum but kinetic energy of the system is non-zero. Yes, it is possible. आपने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे ऐसे काफी सारी प्रॉब्लम्स की होंगी. आपके पास कोई बॉडी है, अचानक से ब्लास्ट हो रहा है, बॉडी है जिसका मोमेंटम जीरो के बराबर है, अचानक से ब्लास्ट हो रहा है, ब्लास्ट होके इसका एक पार्ट यहां जा रहा है, दूसरा पार्ट यहां जा रहा है. एक पार्ट यहां जा रहा है तो इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गई, एक पार्ट यहां जा रहा है तो इसकी भी कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गई, और टोटल काइनेटिक एनर्जी उन दो का सम होगा, विच विल ऑब्वियसली बी नॉन जीरो. काइनेटिक एनर्जी का सम जो है वो जीरो नहीं आ सकता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नेदर इज अ वेक्टर क्वांटिटी की कैंसिल आउट होंगे, और ना ही कोई नेगेटिव हो सकता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल आउट होगा. सो इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी K1, इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी K2, टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी K1 प्लस K2 विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, विच इज नॉट इक्वल. लेकिन मोमेंटम जो इनका है, इनका मिलकर जीरो के ही बराबर होगा. P1 प्लस P2 इज जीरो. इनिशियल मोमेंटम जीरो है तो फाइनल टोटल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए. तो मोमेंटम जीरो हो सकता है और काइनेटिक एनर्जी जो है वो नॉन जीरो हो सकते हैं. इट इज पॉसिबल. सो सभी स्टेटमेंट्स ठीक हैं. दैट मीन्स फोर्थ स्टेटमेंट. ओके, फोर्थ स्टेटमेंट. all of the statements are correct. All of the statements are correct. So let's move on. What is the ratio of potential energy with respect to ground and kinetic energy at the topmost point of the projectile motion? Ratio of, okay. Now, projectile motion, यहां पर आपने velocity u से लॉन्च किया at an angle of theta, at an angle of theta. टॉप पे हमें पता है सिर्फ x कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, u cos थीटा, u cos थीटा. तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी टॉप पे, दैट विल बी हाफ ऑफ m v स्क्वायर, v के बदले में u cos थीटा, तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. दिस इज काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप. ओके, काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप. अब पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड टू ग्राउंड, उसके लिए हमें हाइट चाहिए, mgh फिर कर लेंगे. अब हाइट के लिए आपके पास फॉर्मूला है h इज इक्वल यू स्क्वायर्ड साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g. ओके, यू स्क्वायर्ड साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g. सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी, पोटेंशियल एनर्जी mgh, mgh के बदले में ये यू स्क्वायर्ड साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g. g and g cancels out, तो u is equal to half of m u squared sine squared theta. Now we have to find out ratio. Okay, we have to find out ratio. पहले कौन मेंशन्ड है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? पहले मेंशन्ड है, काइनेटिक एनर्जी बाद में मेंशन्ड है. तो पोटेंशियल एनर्जी को ऊपर रखना है, काइनेटिक एनर्जी को नीचे रखना है. सो पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी. ओके, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट इज हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. लेकिन काइनेटिक एनर्जी नीचे है तो इसको उल्टा करके लिखेंगे, 2 डिवाइडेड बाय एम यू स्क्वायर्ड कॉस स्क्वायर थीटा. 2 and 2 goes to dogs, m and m goes to rats, u squared and u squared goes to cats. Sin square theta divided by cos square theta is tan square theta. So ratio is just tan square theta. Ratio is tan square theta. Do we have any option? Yes. Option number 3, tan square theta. Tan square theta. So let's move on. Let's move on. Velocity time graph of a particle of mass 4 kg moving in a straight line is shown in figure. Work done by all the forces in t equal to 0 to t equal to 2 seconds on the particle is. Work done by all the forces meaning कि net work done आपने निकालना है. Okay, net work done निकालना है. Now ग्राफ से आपको इनिशियल वेलोसिटी मिल रही है और फाइनल वेलोसिटी यहां पर मिल रही है फ्रॉम 0 to 2 seconds. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम निकाल सकते हैं, वही तो नेटवर्क डन है. इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 20 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी क्या है? वो तो 0 के बराबर है. ओके, सो वर्क डन इज इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज के एफ माइनस के आई, हाफ ऑफ एम, मैं कॉमन लेता हूं, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर. वी एफ स्क्वायर इज 0, फाइनल ये है, दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल. तो 0 स्क्वायर इज जस्ट 0 माइनस 20 squared is 400.
400, ये 2 into 200 बन जाएगा. What is mass? Mass is given 4 kg. So 4 into 2 is 8, 800 with this minus sign. So everything was in SI system, तो इसका यूनिट भी SI system में आएगा. तो minus 800 joules. Minus 800 joules, option 3. Okay, minus 800 joules, option 3. Let's move on. Question number 7. Okay, question number 7. A small block of mass 2 kg is kept on a rough inclined surface of inclination 30 degrees, fixed in a lift. The lift goes up with a uniform velocity v equal to 4 meter per second. Uniform velocity, so there is no acceleration. Net force 0 होगा, and the block does not slide on the wedge. The work done by the friction on the block in 1 second will be. So आपके पास कोई एलिवेटर है, ये ऊपर जा रहा है विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, लेट्स से v, बाद में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. यहां पर कोई ब्लॉक आपके पास है, यहां पर कोई ब्लॉक आपके पास है, मैं डॉट से दिखा रहा हूं. अब ब्लॉक में कितने फोर्सेस होंगे, mg या mg के हम सीधे कंपोनेंट्स लेंगे, mg के कंपोनेंट्स लेते हैं. ये कंपोनेंट mg cos थीटा, बाद में थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं जो 30 डिग्री के बराबर है. ये वाला mg sin थीटा, यहां नॉर्मल फोर्स, यहां स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि स्लिप नहीं कर रहा है. ओके, स्लिप नहीं कर रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा. हमें कहा जा रहा है वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक. अब नेट वर्क डन नहीं निकालने के लिए कहा जा रहा है. नेट वर्क डन अगर होता तो 0 होता, क्योंकि नेट फोर्स इज 0 बिकॉज इट इज नॉट मूविंग विद रेस्पेक्ट टू द एलिवेटर, और विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो तब भी नेट फोर्स 0 के बराबर है. तो वर्क डन, नेट वर्क डन वुड बी 0. लेकिन हमें कहा जा रहा है कि वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑनली, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑनली. तो डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड्स है, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड्स है, एलिवेटर ऊपर जा रहा है तो ब्लॉक भी ऊपर जा रहा है. तो एफ एस का कंपोनेंट हम देखेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में कितना होगा. ओके, उसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और एफ एस खुद किसके बराबर होगा, mg साइन थीटा के बराबर होगा, mg साइन थीटा के बराबर होगा. तो ये एंगल अगर थीटा के बराबर है तो ये एंगल भी थीटा के बराबर होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो ये वाला कंपोनेंट जो इसका है दैट विल बी एफ एस साइन थीटा. Theta is with horizontal, तो vertical component will be fs sin theta. तो in the direction of displacement जो component है that is fs sin theta. इस बात का ख्याल रखना, यहां पर cos theta नहीं है, sin theta है. तो displacement की direction में जो component है that is fs sin theta. तो work done जो होगा, work done by friction जो होगा that will be force का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट fs sin थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, v इनटू t, वेलोसिटी इनटू टाइम. v अगर वेलोसिटी है इनटू t कर लें, वेलोसिटी इनटू टाइम. fs खुद किसके बराबर है, वो तो mg sin थीटा के बराबर है, क्योंकि नेट फोर्स जो है वो 0 के बराबर है. तो fs के बदले में mg sin थीटा, और ये sin थीटा जो पहले से ही है तो इट विल बिकम mg sin स्क्वायर थीटा इनटू vt. दिस इज वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इन एनी टाइम t. अब ये फॉर्मूला आपके पास बन गया. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. वैल्यूज क्या हैं, ओके, व्हाट आर आवर वैल्यूज हियर. मास जो है वो 2 kg के बराबर है, सो 2 इंटू g इज 10 इंटू साइन थीटा, थीटा इज 30 डिग्रीज, साइन ऑफ 30 डिग्री 1/2 होता है, लेकिन स्क्वायर है तो 1/4 बन जाएगा, इंटू v इज 4. कितने टाइम में, 1 सेकेंड में आपको बताना है, सो इंटू 1. So this implies work done by frictional force is, ये 4 into 4 cancels out, 2 into 10 is 20 joules, option 3. 20 joules, option 3. Okay, so let's move on to the next one. Question number 7 था ये. Question number 8. The correct statement or statements about conservative forces is, conservative forces आपको पता होना चाहिए, it never dissipates energy. ठीक statement है. Conservative force जो है वो within the system, okay, within the system, it can only transfer energy between kinetic energy and potential energy.
So kinetic से potential, potential से kinetic, so total energy remains conserved if only conservative forces are present. तो dissipation तो possible ही नहीं है conservative के केस में. Work done is path independent, ये भी ठीक statement है, तो you can directly go for all basically. It gives birth to potential energy. Potential energy is only related to conservative fields. Okay, only related to conservative fields. तो all of them, all of them. आपने कभी फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं पढ़ा होगा बिकॉज इट इज नॉट देयर. A ball of mass m is dropped from the cliff of a height h. The ratio of its kinetic energy to the potential energy with respect to the ground when it is when it has fallen through 3/4 h is. When it has fallen through 3/4 h is. Okay, so यहां से किसी पार्टिकल को ड्रॉप किया जा रहा है फ्रॉम ए हाइट h. सो ये टोटल हाइट जो है वो h के बराबर है. ड्रॉप किया जा रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 के बराबर है. इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 के बराबर है. रेशियो 3/4 पे जब ये आएगा 3/4, सो समवेयर हियर यहां से यहां तक 3/4 h. 3/4 h बचा हुआ कितना होगा 1/4 ऑफ h. 1/4 h. 1/4 h. अब यहां पर आपको कहना है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो जो है वो किसके बराबर होगा. पोटेंशियल एनर्जी लेना है विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड, वो रेशियो किसके बराबर होगा. सो पहले हम काइनेटिक एनर्जी देखते हैं वहां पर कितनी होगी. ओके, काइनेटिक एनर्जी देखते हैं वहां पर कितनी होगी, फिर जाके पोटेंशियल एनर्जी तो पता ही है mgh के बराबर. तो विल काइनेटिक एनर्जी हम निकालेंगे यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. So final kinetic energy plus final potential energy is equal to initial kinetic energy plus initial potential energy. Final kinetic energy kf, इसको ऐसे ही रखें. Final potential energy mgh, h के बदले में h/4. फाइनल ये रहा, इनिशियल ये रहा. यहां पर हाइट जो है दैट इज h डिवाइडेड बाय 4. सो h डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 के बराबर है क्योंकि ड्रॉप कर रहे हैं तो इनिशियल स्पीड जो है वो 0 के बराबर है. इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट इज mgh, क्योंकि वहां पर हाइट जो है वो h के बराबर है. सो दिस इंप्लाइज kf इज इक्वल टू mgh. ये वहां जाएगा तो माइनस बन जाएगा, माइनस mgh/4. 1 माइनस 1/4, 4 माइनस 1 इज 3, 3/4, 3/4 mgh बन जाएगा. 3/4 mgh. सो काइनेटिक एनर्जी इज 3/4 mgh. 3/4 mgh. नाउ व्हाट अबाउट द रेशियो? काइनेटिक एनर्जी पहले मेंशन है तो इसे ऊपर रखना होगा. काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी मैं पहले लिखूंगा mgh/4. 4 को ऊपर ला दिया. फिर k ऊपर है, k है 3/4 mgh. 3/4 mgh. mgh goes to dogs, 4 and 4 goes to cats, so 3 is the ratio. 3 is to 1. 3 is to 1. Option 4. 3 is to 1. Okay. So let's move on to the next one. This was 9. Let's move on to 10. When a long spring is stretched by 2 centimeters, its potential energy is V. Oh, what happened? Okay, here it is. When a long spring is stretched by 2 centimeters, its potential energy is V. Its potential energy is V. U नहीं, V से रिप्रेजेंट किया गया है नॉर्मली. पोटेंशियल को V से, सो कंफ्यूज नहीं करना है. दिस इज नॉट पोटेंशियल, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी V. If the spring is stretched by 10 centimeters, the potential energy in it will be. If the spring is stretched by 10 centimeters, the potential energy will be. Okay. पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए स्प्रिंग सिस्टम हमें पता है हाफ ऑफ kx² के बराबर है. पोटेंशियल एनर्जी, नॉट काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी जिसको इसने v, ओके, u से हम लिखते हैं, फिलहाल u से रिप्रेजेंट कर लेंगे.
u is equal half of kx squared. K is the spring constant. Okay, K is the spring constant. So you can see u जो है that is directly proportional to x square. X is the extension or compression in the spring, directly proportional to x squared. This means u2 divided by u1 is equal to x2 squared divided by x1 squared. अब x2 जो है वो 10 सेंटीमीटर है और x1 जो है वो 2 सेंटीमीटर है, लेकिन स्क्वायर के साथ. So 10 square is 100 divided by 2 square is 4. 2 square is 4. So this means u2 is equal to 100 divided by 4 is 25. u1 जो है वो उसे v कहा गया है, so इसे ऊपर लाते हैं. So 25 times v. 25 times v. Option 2. Okay, option 2. So this is question number 10 for you. Let's move on. 11. A uniform ladder of mass m and length l resting horizontally on the floor is lifted and held against the vertical wall by an angle of 30 degrees with the floor. Calculate work done by gravity. Okay, calculate work done by gravity. Initially it is just lying on the floor. यहाँ पर है lying on the floor. तो इसके सेंटर ऑफ मास की हाइट जो है, सेंटर ऑफ मास यहां पर, इसके हाइट जो है वो 0 के बराबर. सो पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 के बराबर. जब आपने इसको ऐसे रखा एट एन एंगल ऑफ, डू वी हैव एनीथिंग, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद द फ्लोर. सो ये एंगल जो है वो 30 डिग्री के बराबर है. 30 डिग्री के बराबर. सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली एट द सेंटर, एग्जैक्टली एट द सेंटर. यूनिफॉर्म लेडर है, यूनिफॉर्म है, तो एग्जैक्टली एट द सेंटर. सो सेंटर ऑफ मास की हाइट आप देखें किसके बराबर है. हाइट आपको पता चल गई तो पोटेंशियल एनर्जी पता चल गई. ओके, ये पार्ट जो है यहां से लेके यहां तक, दैट विल बी l/2. हाफ ऑफ द लेडर इज देयर, l/2. ये एंगल जो है वो 30 डिग्री के बराबर है, तो ये हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा. परपेंडिकुलर होता है हाइपोटेन्यूज इनटू साइन ऑफ थीटा. सो दिस इज l/2 into sine of 30 degree. Sine of 30 is again 1/2, तो ये बन जाएगा l/4. So height जो है वो l/4 के बराबर है. Okay, this height is l/4. l/4. Okay, now height आपको मिल गई, तो पोटेंशियल एनर्जी मिल गई, इनिशियल भी पता है. वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, सो दिस इज माइनस डेल्टा यू. ओके, माइनस डेल्टा यू. माइनस डेल्टा यू, माइनस से जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो दैट बिकम्स इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी. इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 के बराबर है और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी mgh. ओके, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी mgh. mgh, सो mgh के बदले में ये लिखते हैं l/2, l/4 सीधे, l/4. So minus mgl divided by 4. Minus mgl divided by 4. Do we have anything like this? Minus mgl divided by 4. Option number 4. Okay, option number 4. So let's move on to the next one. 12. Potential energy versus displacement curve for one-dimensional conservative field is shown. Potential force at A and B respectively are. फोर्सेस को आपने पॉजिटिव नेगेटिव देखना है कि कहां पर क्या है, फोर्स कहां पर पॉजिटिव है, कहां पर नेगेटिव. पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स जो है वो ग्राफ दिया हुआ है. पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बीच में आपके पास रिलेशन है -du/dx. यहां पर वन डिमेंशनल केस है इसलिए डी, अदरवाइज पार्शियल डिफरेंशिएशन होती है. -du/dx. अब du/dx जो है दैट इज स्लोप. ये जो है फ्रॉम द ग्राफ, दिस इज स्लोप ऑफ द कर्व. स्लोप ऑफ द कर्व. तो अगर स्लोप पॉजिटिव है, माइनस इंटू पॉजिटिव विल बी माइनस, तो फोर्स इज नेगेटिव. अगर स्लोप नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, तो फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा. तो स्लोप आपने देखना है कि किस पॉजिटिव है या नेगेटिव है. ए पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, ए पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे दैट विल बी लाइक दिस. तो अगेन यू कैन क्लियरली सी कि स्लोप जो है वो नेगेटिव है. और बी पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे तो पॉजिटिव है, एक्यूट एंगल बन रहा है, सो दिस इज पॉजिटिव स्लोप. ए पे अगर नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, तो फोर्स जो है वो पॉजिटिव होगा. तो ए पे फोर्स जो है वो पॉजिटिव है और बी पे स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव बन जाएगा, तो फोर्स जो है वो नेगेटिव होगा. तो ए पे पॉजिटिव फोर्स, बी पे नेगेटिव फोर्स. तो पहला पॉजिटिव नेगेटिव,
पॉजिटिव नेगेटिव, ऑप्शन टू। ओके, सो काफी सिंपल क्वेश्चन। 13, let's go for 13 now. Is it visible? Let's try. A force 4I plus itna newtons acting on a body maintains its velocity itna meter per second. The power exerted is, okay, पावर आपने देखना है किसके बराबर है। पावर हमें पता है कि फोर्स डॉट वेलोसिटी है, फोर्स डॉट वेलोसिटी। अब कंपोनेंट वाइज दिया हुआ है तो डॉट प्रोडक्ट इज सिंपली मल्टीप्लाइंग कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स एंड एडिंग देम। 4 into 2 is 8 plus 1 into 2 is 2 minus plus is minus 3 into 2 is 6. So 8 minus 6 is 4, 8 minus 6 is 2, 2 plus 2 is 4 watt। SI सिस्टम में सब कुछ है तो इसका यूनिट भी SI सिस्टम में होगा 4 watt, ऑप्शन 1। ओके, ऑप्शन 1। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। 13. A body is moved along a straight line by a machine delivering constant power. The distance moved by the body in time t is proportional to, okay, is proportional to. Okay, power हमें पता है is FV, वन डिमेंशनल केस में सिंपली F into V, अदरवाइज F डॉट V, वन डिमेंशनल केस में F into, स्ट्रेट लाइन है तो सीधे F into V। पावर इज इक्वल टू F into V। ओके, सो पावर के बारे में कहा गया है कि वो कांस्टेंट पावर है। सो आई कैन राइट P इज इक्वल टू MA into V। सो आई कैन राइट P इज इक्वल टू M, A के बदले में आ रहा है dV by dt into V। हमें कहा गया डिस्टेंस S इज प्रोपोर्शनल टू, ओके, डिस्टेंस S इज प्रोपोर्शनल टू। तो यहां से व्हाट विल डू इज विल फाइंड आउट V वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फिर जाके वहां से डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो V dV ऐसे रखते हैं, V इंटू dV इज इक्वल टू M वहां, dt वहां, सो P डिवाइडेड बाय M इंटू dt, P डिवाइड बाय M इंटू dt। अब इंटीग्रेट कर लें, इंटीग्रेटिंग 0 to T 0 to V, यहां बन जाएगा V स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद भी। यहां पर P बाय M तो कांस्टेंट है, dt की इंटीग्रेशन इज T माइनस 0 इज जस्ट T। तो V जो आ गया आपके पास इज ट्वाइस P बाय M इंटू T, लेकिन स्क्वायर यहां आएगा तो रूट, तो इसका मैं अलग से रूट देता हूं, इसको अलग से पावर 1/2 लेते हैं। ओके, सो ये आपके पास वेलोसिटी आ गई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी आ गई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट लेते हैं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। डिस्प्लेसमेंट देखते हैं कि क्या होगी। Now S is equal to, yeah, let's write it this way. V is equal to dx by dt. So dx is equal to v dt. dx is equal to v dt. इंटीग्रेट कर लें, इंटीग्रेशन यहां से भी 0 to v, यहां पर 0 to x, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, सब्स्टिट्यूट करने के, लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद x इज इक्वल टू v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें, रूट ऑफ 2m बाई p, वो तो कांस्टेंट है तो उसे बाहर ही रखें, रूट ऑफ 2m p डिवाइडेड बाई m, t टू द पावर 1/2, t टू द पावर 1/2 की इंटीग्रेशन t टू द पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1, दैट इज 3/2। सो t टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, डिवाइड बाई 3/2। लिमिट सब्स्टिट्यूट, ओके, विद रेस्पेक्ट टू t है तो मैंने लिमिट गलत लिखा है, विद रेस्पेक्ट टू t तो अपर लिमिट t रहेगा। सो इनिशियल 0 है तो यही बन जाएगा लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद भी। हमें प्रोपोर्शनैलिटी बतानी है तो x इज क्लियरली प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर 3/2, बाकी सब कांस्टेंट है, सो t टू द पावर 3/2, ऑप्शन 2। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। 15. Two perfectly elastic particles A and B of equal masses traveling along the line joining them with velocities 5 and 10, after collision their velocities will be। इलास्टिक कोलिजन है, वन डिमेंशनल कोलिजन है, इक्वल मासेस है तो स्पेशल केस है। इस स्पेशल केस में आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटीज आर सिंपली एक्सचेंज्ड।
जो पहले की वेलोसिटी है बिफोर कोलिजन वो दूसरे की बन जाती है आफ्टर कोलिजन, जो दूसरे की वेलोसिटी है बिफोर कोलिजन वो पहले की बन जाती है आफ्टर कोलिजन। सो दे सिंपली इंटरचेंज देयर वेलोसिटी। दे सिंपली, कब कंडीशंस क्या है, इक्वल मासेस होने चाहिए, वन डिमेंशनल होना चाहिए, इलास्टिक कोलिजन होना चाहिए। यहां पर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है, तो दे विल सिंपली रिवर्स देयर, इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज। सो 5 और 10 है तो ये बन जाएगा 10 और 5, इंटरचेंज करके 10 और 5 और 10 बन जाएगा 10 और 5, 10 और 5, 10 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन 3। लेट्स मूव ऑन। 16, let's go for this. A smooth sphere of mass m moving with velocity u directly collides directly, so one dimensional hai, elastically with another sphere of mass m. So masses are not same this time, at rest. So target is at rest. After collision, their final velocities are v and v respectively. The value of v is. So simple, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये पार्टिकल 1 है, स्मॉल m पार्टिकल 2 है, कैपिटल V पार्टिकल 1 की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, स्मॉल v पार्टिकल 2 की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। सो सिंपल फॉर्मूला आपने याद रखना है, पता होना चाहिए। v2 जो है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल आफ्टर कोलिजन इज m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m2 प्लस m1 इंटू u2 प्लस ट्वाइस m1 डिवाइडेड बाय m2 प्लस m1 इंटू u1 1 वाले जो है u1 u2 दे आर बिफोर कोलिजन, और 2 जो है v2 दैट इज आफ्टर कोलिजन। अब u2 जो है पार्टिकल 2 जो है बिफोर कोलिजन इज एट रेस्ट, सो u2 0 के बराबर है, तो ये सारा 0 बन जाएगा, ये सारा 0 बचाइए। सो दिस इंप्लाइज v2 इज इक्वल टू ट्वाइस m1 जो है वो कैपिटल M है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, सो स्मॉल m प्लस कैपिटल M या कैपिटल M प्लस स्मॉल m, व्हाटएवर यू लाइक। u1 जो है वो सिंपली u के बराबर है, सो ट्वाइस m डिवाइडेड बाय m प्लस m इंटू u, ट्वाइस कैपिटल M इसने इसको ऐसे लिखा है, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय m, कैपिटल M, तो ये बन जाएगा 2u डिवाइडेड बाय small m by capital M plus capital M by capital M is just 1. So 2u divided by m plus 1, 2u divided by m plus 1, option 3. Okay, option 3. So formula अगर आपको पता है तो this is just a few steps. Let's move on. 17. Above A of a pendulum of mass m released from the horizontal to the vertical, okay, doesn't make sense. Another bob B of same collides with another, hits another bob B of the same mass at rest on the table as shown in figure. If the length of the pendulum is 1 meter, what is the speed with which the bob B starts moving? Neglect the size of the bob and assume that the collision is elastic. दोनों बॉब्स जो हैं वो आइडेंटिकल हैं, ऑफ द सेम मास, बी ऑफ द सेम मास, तो दोनों जो है वो आइडेंटिकल हैं। जो ए की वेलोसिटी जो यहां पर आके बन जाएगी, ए की वेलोसिटी जब वो यहां पर आएगा तो उसकी जो भी वेलोसिटी बन जाएगी दैट विल बी सिंपली ट्रांसफर टू द अदर वन, ए विल कम टू रेस्ट, बी को वो वेलोसिटी मिल जाएगी। तो बी की वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी होगी? जो ए की होगी यहां पर आके, क्योंकि वो ए वहां पर आके वो वेलोसिटी बी को ट्रांसफर कर लेगा। सिंपल, आइडेंटिकल पार्टिकल्स है, इलास्टिक कोलिजन है, तो वेलोसिटीज विल बी सिंपली इंटरचेंज। अच्छा, इसमें यह बात भी ध्यान में रखें, जब ए यहां पर आएगा, जब ए यहां पर आएगा तो उसकी वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में है, उसकी वेलोसिटी जो है इस डायरेक्शन में, और बी जो है वो बिल्कुल उसके सामने वहां पर है, बी जो है वो यहां पर है, तो ये बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन बन रहा है। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये हेड ऑन कोलिजन बन रहा है, सो उसमें सिंपली वेलोसिटीज विल बी इंटरचेंज। सो आपके सिंपली देखना है कि ए की वेलोसिटी यहां पर आके क्या होगी, ए की वेलोसिटी बॉटम पे आके क्या होगी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सिंपल यूज करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो या डायरेक्टली शायद आपको फॉर्मूला याद हो,
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ mv स्क्वायर प्लस इनिशियल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, यहां पर आके हाइट जीरो बन गई तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो इज इक्वल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, आपने रिलीज किया है फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mgh, लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 1 मीटर, सो हाइट जो है वो 1 मीटर के बराबर होगी यहां पर, सो mg into 1, m and m goes to dog, so v square is equal to 2gh normally होता है, so this implies v is equal to under root of 2g, v is equal under root of 2g. काफी सारे बच्चों को डायरेक्टली फॉर्मूला याद होगा, when it falls through a height of h, doesn't matter how, when it falls through a height of h, velocity is under root of 2gh. काफी सारे बच्चों को ये पहले ही पता होगा, तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं यहां पर. So under root of 2g, okay, values हमें substitute करने हैं. This is under root of 2 into g is 20 is 4 into 5, 4 root is, this is 2 root 5, okay, 2 root 5, root 5 आपको substitute करना है. So question number 17 मैंने पहले वर्कआउट किया है, 4.47 है, 4.47 मीटर पर सेकेंड. 4.47 is option 1, okay, option 1. So let's move on to the next one. A ball of mass m falls from height h on the floor and its coefficient of restitution is e. The height attained by the ball after the second rebound is. So again formula आपको पता होना चाहिए, height gained after the nth rebound होता है e to the power 2n into h, h is the initial height, okay, जहां से आपने इसे रिलीज किया था, वो तो कहा गया है कि h ही के बराबर है, तो coefficient of restitution is 2, second rebound तो n जो है वो 2 के बराबर है, so h2 height gained after the second rebound is 2 into 2 is 4, e to the power 4h, e to the power 4h, option 3. So again formula याद है, you are just one step away from the answer, okay, one step, formula याद होना चाहिए, formula याद रखना जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट जेई के लिए. 19, which of the following statements is true? नोट कर लें, all of the above कोई नहीं है, सो आपको जस्ट एक स्टेटमेंट देखना है कि कौन सा ठीक है, जो भी स्टेटमेंट आपको पहले मिलेगा ठीक है वही आपका आंसर है. Momentum is conserved in all collisions, but kinetic energy is conserved only in inelastic. नहीं, kinetic energy is conserved in elastic collisions, not inelastic collisions. Momentum तो हर बार conserved ही है. Neither momentum not kinetic energy, तो ये तो नहीं है. Momentum is conserved in all collisions, but not kinetic energy. Yes, kinetic energy is not conserved in all of them. Kinetic energy is conserved in only elastic collisions, so not all of them, but momentum is conserved in all of them. Both momentum and kinetic energy are conserved in all collisions. नहीं, momentum तो all collisions में है लेकिन kinetic energy all collisions में नहीं है, तो option 3. So let's move on. A bomb explodes in air when it has a horizontal speed of v. It breaks into two identical pieces of equal masses, okay, equal mass is important hai. If one goes vertically up at the speed of 4v, find the velocity of the other immediately after the collision, okay, immediately after the collision. Find the velocity of the other immediately after the collision. So यहां पर कोई पार्टिकल है, कोई बॉडी है, मूविंग हॉरिजॉन्टली विद v इन एयर, तो यहां पर इसकी वेलोसिटी v है, इसका मास लेट्स सपोज 2m कंसिडर कर लेते हैं, ओके, लेट्स सपोज 2m, ताकि फिर डिवाइड होके m और m लेंगे. तो व्हाट इज इट्स मोमेंटम? इनिशियल मोमेंटम जो है दैट इज 2mv इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सो 2mvi लेते हैं, 2mvi हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, x एक्सिस के अलॉन्ग है. दिस इज इट्स मोमेंटम, ओके, दिस इज इट्स मोमेंटम. ना आफ्टर कोलिजन क्या होगा? आफ्टर कोलिजन एक पार्टिकल के बारे में आपसे कहा जा रहा है कि वो वर्टिकली ऊपर जा रहा है, गोज वर्टिकली अप विद द स्पीड ऑफ 4v, तो इसका मोमेंटम जो होगा वो बन जाएगा m4v, तो 4 में यहां पर लिखता हूं 4mv इंटू
into j, ये एक का मोमेंटम, लेट्स कॉल दिस p2, 4mv into j. दूसरा, find the velocity of the other immediately after the collision, velocity of the other immediately after the collision. So second one particle जो है, second जिसका mass m, again m ही है. Remember, momentum must remain conserved, momentum must remain conserved. इसका पहले इनिशियली y डायरेक्शन में कोई मोमेंटम नहीं है, y डायरेक्शन में कोई मोमेंटम नहीं है, तो यहां पर भी y डायरेक्शन में कोई नेट मोमेंटम नहीं होना चाहिए. तो जितना पहले दूसरे पार्टिकल का हमने लिया है y डायरेक्शन में, उतना ही पहले का होना चाहिए, लेकिन नेगेटिव y डायरेक्शन में, ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए. सिर्फ मैं y डायरेक्शन की फिलहाल बात कर रहा हूं. तो इसका है 4mv इन द अपवर्ड डायरेक्शन, इसका भी होना चाहिए 4mv इन द डाउनवर्ड. सिर्फ y कंपोनेंट की मैं बात कर रहा हूं. सो दिस इज p1y कंपोनेंट, p1y कंपोनेंट मस्ट बी इक्वल टू 4mv j, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, तो अपोजिट डायरेक्शन में है. तो एक तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस में बन गई 4v, हाँ 4v in the negative direction. So this is velocity of particle 1 along y axis after collision minus 4v, minus 4vj, minus 4vj. Yeah, let's not write it this way. So let's simply write 4v, बाद में फिर यूनिट वेक्टर नोटेशन में लिखते हैं. ओके, एक्स डायरेक्शन में जो दूसरा पार्टिकल जो आपसे कहा गया है कि मूव्स वर्टिकली अपवर्ड, उसका तो एक्स डायरेक्शन में कुछ नहीं है, उसका एक्स डायरेक्शन में कुछ नहीं है. तो इसका जो है एक्स डायरेक्शन में कितना होना चाहिए? रिमेंबर, इनिशियली एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम जो है, इनिशियली एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम जो है दैट इज 2mv, तो वो अभी भी रहना चाहिए 2mv, तो अभी भी रहना चाहिए 2mv. तो इसका इस डायरेक्शन में दिस इज p1x कंपोनेंट 2mvi, तभी जाके तो सेम रहेगा इनिशियल और फाइनल. सी y कंपोनेंट विल कैंसल आउट, टोटल मोमेंटम 2mv इन x डायरेक्शन, टोटल मोमेंटम 2mv इन द x डायरेक्शन. ओके, अब मास ऑफ द पार्टिकल इज नॉट 2m, मास ऑफ द पार्टिकल इज m और m अलग अलग हो गए, m और m, तो इसकी वेलोसिटी जो है वो 2v है, m के बगैर 2v इज द वेलोसिटी इन x डायरेक्शन. तो इसकी वेलोसिटी 2v है इन x डायरेक्शन, 2v है इन द x डायरेक्शन. सो 2v एंड 4v, 2v एंड 4v. सो नेट वेलोसिटी जो होगी वो किसके बराबर होगी? v इज इक्वल टू 2v i यूनिट वेक्टर minus 4vj unit vector. 2vi alhamdulillah, 2vi minus 4vj option 1, option 1. ओके, इस बात का ख्याल रखना है कि इसका मास अलग से m है, इसका मास अलग से m है, तो m के बगैर जो है वही वेलोसिटी बन जाएगी, वही वेलोसिटी बन जाएगी. यहां पर मास जो है वो 2m था, तो 2m के बगैर जो है v वही वेलोसिटी है. सो मास के बगैर वो देखना इंपॉर्टेंट है, m और m दोनों का मास है. चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. 21. Okay, 21. Assuming the earth to have a constant density, point out which of the following curve will show the variation of acceleration due to gravity from the center of earth to the point far away from the surface of earth. Uniform density, constant density. So you can assume it as a constant sphere, uniform sphere. Okay, uniform sphere. यूनिफॉर्म स्फीयर. अब यूनिफॉर्म स्फीयर के केस में आपको पता होना चाहिए, हमें क्या बताना? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. यूनिफॉर्म स्फीयर के बारे में आपको पता होना चाहिए, ई इनसाइड जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और आउटसाइड जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. सो इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर तो स्ट्रेट कर्व आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी, फिर इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. सो इट इज ऑप्शन 3. Okay, option 3. Let's move on. 22. R is the radius of Earth and omega is its angular velocity, and gp is the value of g at the poles. Okay, the effective value of g at the latitude lambda is equal to 60 degrees is, okay. So variation of g with latitude, g lambda होता है g minus r omega square cos square lambda.
जी इज द एक्सेलरेशन जो होती विदाउट रोटेशन, जिसको हम नॉर्मली 9.8 लेते हैं. सो दिस इज वैल्यू ऑफ जी विदाउट रोटेशन. देन विद लैटिट्यूड कैसे वैरी कर लेगा, विद रोटेशन वाला इफेक्ट अगर हम कंसिडर कर लेंगे माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा. अब हमें बताया गया है कि लैम्डा जो है वो 60 डिग्री के बराबर है, और जीपी कहा गया है इज द एक्सेलरेशन एट द पोल्स, एक्सेलरेशन एट द पोल. सो दिस इज योर अर्थ, दिस इज द इक्वेटर. लैम्डा होता है एंगल फ्रॉम द इक्वेटर, एंगल फ्रॉम द इक्वेटर. तो 60 डिग्री पे आपको यहां पर बताना है कि किसके बराबर होगा. दिस इज 60 डिग्रीज. और जो पोल है, पोल पे ये है यहां पर, तो वहां पर एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर है, वहां पर एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर. तो 90 डिग्री अगर है पोल्स के लिए, पोल्स के लिए एट पोल्स, जीपी मैं लिखूंगा इज इक्वल टू जी माइनस कॉस ऑफ 90 जीरो के बराबर होता है, तो ये सारा जीरो बन जाएगा. तो दिस इज जीपी इज जी. तो इस जी को यहां पर याद रखने के दो तरीके हैं. या तो दिस इज वैल्यू ऑफ जी एज इफ अर्थ इज नॉट रोटेटिंग, इफ अर्थ वेयर नॉट रोटेटिंग देन द वैल्यू ऑफ जी, और या फिर आप कह सकते हैं दिस इज वैल्यू ऑफ जी एट पोल्स. ओके, एट पोल्स. फिर अब जाके जी जो है वही जीपी है. अब 60 डिग्री पे जाते हैं. सो जी एट 60 डिग्रीज इज इक्वल, जी के बदले में आप जीपी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा. कॉस ऑफ 60 इज 1/2, लेकिन स्क्वायर है तो 1/4 बन जाएगा. तो आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ऑप्शन 1. जीपी माइनस 1/4 आर ओमेगा स्क्वायर. Okay, so let's move on to the next one. 23. A body weighs 200 newtons on the surface of the earth. How much will it weigh halfway down the center of the earth? Again, formula पता होना चाहिए. Halfway down the center of the earth, to the center of the earth is depth is equal to half of the radius. डेप्थ इज इक्वल हाफ ऑफ द रेडियस. सो आपको फॉर्मूला जो है वो पता होना चाहिए. सो फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी इज जी, विच इज बेसिकली जी एस, एक्सेलरेशन एट द सरफेस ऑफ अर्थ, टाइम इज 1 माइनस डी डिवाइडेड बाय आर, 1 माइनस डी डिवाइडेड बाय आर. सो जी डी इज इक्वल टू जी एस, या सिंपली जी 1 माइनस डी, डी बाय आर इज 1/2. ओके, डी बाय आर इज 1/2, सो 1/2, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1/2 इज 1/2, सो जी डिवाइडेड बाय 2. सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो हाफ हो गई है, तो वेट भी हाफ हो जाएगा. ओके, वेट भी हाफ हो जाएगा. वेट जो है वो हम mg के बराबर लेते हैं, तो g अगर हाफ हो गया तो वेट भी हाफ हो जाएगा. सो 200 न्यूटन ओरिजिनल वेट है, तो 100 होगा. अब 100 ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 100 अब होगा. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. 24. The value of acceleration due to gravity at the Earth's surface is 9.8 meter per second square. The altitude above its surface at which the acceleration due to gravity decreases to 4.9. नोट कर लें 4.9 इसका हाफ है. तो आपको सिंपली बताना है कि हाइट क्या होगी जहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाफ बन जाएगी. ओके, इज क्लो रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो दिया हुआ है. अब फॉर्मूला अगेन फॉर्मूला बेस्ड है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h आपको पता होना चाहिए इज जी एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. ओके, सो दिस इज इट. अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है. वो जो है जी एस टाइम्स 1 माइनस 2h डिवाइडेड बाय आर, वो यहां पर यूज नहीं करना है. दैट इज ओनली वैलिड इफ h इज स्मॉल, इफ h इज स्मॉल. तो यहां पर तो बिल्कुल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाफ बन रही है, तो वी कैन अज्यूम कि h स्मॉल नहीं है, वी कैन अज्यूम कि h स्मॉल नहीं है. तो हमें h निकालना है, हमें h निकालना है. सो दिस इंप्लाइज जी एच कहा गया है, दैट इज हाफ ऑफ जी. सो जी एस डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल जी एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. सो दिस इंप्लाइज जी एस एंड जी एस गोज, ये यहां क्रॉस. सो 1 प्लस एच डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ऊपर. So this implies 1 plus h divided by r is equal to square, वहां तो √2 बन जाएगा. Okay, √2. So this implies h by r is √2 minus 1. This implies h is equal to √2 minus 1 into r.
√2 - 1 इंटू आर। अब √2 जो है दैट इज रफली 1.4, 1.4 - 1 इज 0.4, 0.4 इंटू आर जो है वो दिया हुआ 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। सो दिस इंप्लाइज h इज इक्वल टू 0.4 इंटू 6.4 आपने करना है। अब 4 into 4 is 16, 4 into 6 is 24, 25, 2 के बाद पॉइंट, सो 2.56 into 10 to the power 6। सब कुछ SS सिस्टम में था तो इसका यूनिट भी SS सिस्टम में आएगा। 2.56 into 10 to the power 6, 2.56 into 10 to the power 6, ऑप्शन 6। ओके, ऑप्शन। सो फॉर्मूला अगेन पता है, देन देयर इज जस्ट ग्रेड 5 मैथमेटिक्स इन्वॉल्व, फॉर्मूला पता होना चाहिए। So let's move on to the next one. 25. Two bodies of masses m and 4m are placed at distance r. The gravitational potential, not potential energy, gravitational potential at a point on the line joining them where the gravitational field is 0. तो पहले तो आपको वो पॉइंट देखना है जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 के बराबर है, फिर जाके वहां पर देखना है कि पोटेंशियल किसके बराबर है। दोनों का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सो पहले तो ये देखते हैं कि कहां पर फील्ड जो है वो 0 के बराबर है। सो दिस इज सपोज m, दिस इज 4m। फील्ड 0 होगा in between the two charges closer to the smaller one, suppose somewhere here, फील्ड 0 होगा। इसे 1 कहते हैं, इसे 2 कहते हैं। 1 का फील्ड टुवर्ड्स 1 होगा, 2 का फील्ड टुवर्ड्स 2 होगा। सो यू कैन सी अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है। तो अगर डिस्टेंस अप्रोप्रिएट एडजस्ट कर ली गई तो ये E1 और E2 बराबर आएंगे, दे विल कैंसिल आउट, तो नेट फील्ड जो है वो 0 के बराबर बन जाएगा। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज r। टोटल डिस्टेंस जो है वो r के बराबर है बिटवीन द टू पार्टिकल्स। लेट्स सपोज ये वाली डिस्टेंस जो है वो x के बराबर है फ्रॉम द स्मॉलर वन। अब E1 और E2 अपोजिट डायरेक्शन में तो है ही, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होने चाहिए, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होने चाहिए। अब फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है दैट इज GM डिवाइडेड बाय R डिवाइडेड बाय X इज इक्वल टू दूसरे का G इंटू 4M, मास 4M है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर, ये फील्ड है स्क्वायर x स्क्वायर, और यहां पर आएगा R माइनस एक्स, R माइनस एक्स, ये वाली डिस्टेंस R माइनस एक्स, R माइनस एक्स स्क्वायर, R minus x square. GM cancels out, so this implies R minus x square को ऊपर लेते हैं तो R minus x divided by x square को कॉमन लेते हैं is equal to 4 R by x, x को अलग अलग डिवाइड कर ले, minus x by x is 1, ये बन जाएगा √4 is 2, so this implies R divided by x is equal to, ये यहाँ आएगा तो 3 बन जाएगा, so x is equal to R divided by 3, R डिवाइडेड बाई 3। तो आपको पॉइंट मिल गया जहां पर फील्ड 0 के बराबर है। किस डिस्टेंस में? R बाई 3। कहां से? लेकिन स्मॉलर m से, स्मॉलर m, दूसरा 4m है, m से उसकी डिस्टेंस जो है वो R बाई 3 के बराबर है, R बाई 3 के बराबर है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोटेंशियल। ये m, ये 4m, आपका पॉइंट यहां पर है, पॉइंट P, यहां से डिस्टेंस जो है वो R बाई 3 के बराबर है, तो ये वाली डिस्टेंस जो होगी दैट विल बी 2R बाई 3, 1/3 ऑफ R यहां से, तो वहां से 2/3 ऑफ R होगा। सो पोटेंशियल जो है दैट इज GM बाई R माइनस साइन के साथ, लेकिन ओके माइनस GM बाई R, तो दोनों के लिए यूज कर लें। अब ये कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है कि डायरेक्शन देखेंगे कैंसिल आउट हो, नहीं, सिंपल अलजेब्रिक सम, सिंपल अलजेब्रिक सम। और ग्रेविटेशन पोटेंशियल तो हर बार नेगेटिव ही होगा, सो माइनस GM डिवाइडेड बाई R, R स्क्वायर नहीं, आप सिंपली R, और दूसरे का भी माइनस G4M डिवाइडेड बाय R के बदले में 2R डिवाइडेड बाय 3, 2R डिवाइडेड बाय 3। सो ये 3 ऊपर आएगा, यहां से भी 3 ऊपर आएगा, तो 3GM डिवाइडेड बाय R, 3 इंटू 4 इज 12, चलिए लिखते हैं माइनस 3GM डिवाइडेड बाय R, माइनस 3 ऊपर, 4 इंटू 3 इज 12, या यहां पर पहले कैंसिलेशन करते हैं, 2 into 2, 3 into 2 is 6, 6GM divided by R, 6GM divided by, so minus 3 minus 6 is minus 9, minus 9GM divided by R, minus 9GM divided by R, ये रहा ऑप्शन 4, ऑप्शन 4। सो पहले आपको वो पॉइंट देखना है जहां पर फील्ड 0 के बराबर होगा, फिर फॉर्मूला यूज कर लें, वो भी फॉर्मूला से ही मिलेगा, फॉर्मूले पता होने चाहिए। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन।
26. Okay, 26. Select the proper graph between the gravitational potential, not potential energy. Potential is different, potential energy is different. Select the proper graph between gravitational potential V or due to the hollow sphere and distance r from its center. Hollow sphere के लिए आपको पता होना चाहिए आउटसाइड पॉइंट्स के लिए इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट पार्टिकल लोकेटेड एट इट्स सेंटर. सो आउटसाइड के लिए इट सिंपली जस्ट पॉइंट पार्टिकल वाला माइनस जी एम डिवाइडेड बाय आर. सरफेस पे स्मॉल आर के बदले में कैपिटल आर यूज करना है. सो वी एस इज इक्वल टू माइनस जी एम डिवाइडेड बाय कैपिटल आर. इनसाइड अब हॉलो स्फीयर है तो इनसाइड वाला पोटेंशियल जो है दैट इज सेम एज दैट ऑन द सरफेस. ओके, इनसाइड पोटेंशियल कहीं पर भी इज सेम एज दैट ऑन द सरफेस. सो वो भी होगा माइनस जी एम डिवाइडेड बाय आर. सो सेंटर से लेके सरफेस तक पोटेंशियल इज कांस्टेंट. किसके बराबर? माइनस जी एम डिवाइडेड बाय आर, जो सरफेस वाला है कैपिटल आर. फिर जाके सरफेस ऑनवर्ड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर विद द माइनस साइन, लेकिन विद द माइनस साइन. सो पहले तो कांस्टेंट नेगेटिव साइड से माइनस जी एम डिवाइडेड बाय आर. तो ये रहा ग्राफ. पहले कांस्टेंट, नेगेटिव कांस्टेंट, फिर जाके इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी विद द माइनस साइन. सो 27 पे जाते हैं. If g is the acceleration due to gravity on the Earth's surface, the gain in potential energy of the body at a height equal to 3 times the radius of Earth, at a height equal to 3 times the radius of Earth will be. So, potential energy का formula again आपको पता होना चाहिए कि किसके बराबर है. Potential energy का formula with considering the variation of acceleration due to gravity is minus mgsr. gs is acceleration due to gravity on the surface of Earth divided by 1 plus h divided by r. 1 plus h divided by r. So ये तो जनरल फॉर्मूला है. अब आपसे कहा जा रहा है व्हाट इज द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट हाइट इक्वल टू 3 टाइम्स द रेडियस. सो ग्राउंड से, सरफेस से जब आप 3 टाइम्स हाइट पे जाएंगे, 3 टाइम्स दैट ऑफ रेडियस जाएंगे, तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होगा? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस एम जी एस इंटू आर. h 0 के बराबर है ऑन द सरफेस, तो ये सारा 0 बन जाएगा, सिर्फ 1 बन जाएगा. डिवाइडेड बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं है. At h equal to 3 times r, 3 times the radius of Earth. Okay, 3 times the radius of Earth. तो potential energy final minus mgs into r divided by 1 plus h by r. h is 3 times r. 3r, r and r will cancel out, तो just 3. तो ये बन जाएगा minus mgs r divided by 4. तो ये रही फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ये रही इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. सो व्हाट इज द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी? uf माइनस ui. uf जो है दैट इज माइनस mgsr डिवाइडेड बाय 4. वो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, वहां पर फॉर्मूला का माइनस, ये माइनस 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 प्लस mgs इंटू आर. mgs इंटू आर. mgsr कॉमन. 1 minus 1 by 4. Okay, 1 minus 1 by 4. 1 minus 1 by 4. 4 minus 1 is 3. 3 by 4 mgsr. So 3 by 4 mgr. 3 by 4 mgr. gs के बदले में simply g लिखा है. g is the acceleration due to gravity on the surface of Earth. So 3 by 4 mgr. So let's move on to the next one. A body is orbiting very close to the Earth's surface with kinetic energy Ke. The energy required to completely escape from it is kinetic energy दी हुई है when orbiting very close to the surface of Earth. Very close to the surface of Earth, ये Earth, something is orbiting very close to the surface of Earth. मतलब h जो है वो negligible है, तो आप इसका ऑर्बिटल रेडियस जो है वो भी आर ही ले सकते हैं. रेडियस जो है इसके ऑर्बिट का रेडियस आर ही ले सकते हैं. एच इज नेग्लिजिबल. तो इफ इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, तो सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स g, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r.
mv square divided by r a cancel out होगा, m and m will cancel out, तो v square is equal to gm divided by r, या फिर v is equal, चलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? सो दिस इंप्लाइज काइनेटिक एनर्जी, जिसको क्वेश्चन ने सिंपली के ई कहा है, इज हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर के बदले में ये जी एम डिवाइडेड बाय आर, हाफ ऑफ जी एम एम डिवाइडेड बाय आर। अब एस्केप होने के लिए, ओके, एस्केप होने के लिए एस्केप वेलोसिटी का होना जरूरी है, विच इज अंडर रूट ऑफ 2gm डिवाइडेड बाय आर, ओके, अंडर रूट ऑफ 2gm डिवाइडेड बाय आर। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए एस्केप करने के लिए? 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर, वी ई स्क्वायर, वो ये सारा स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट विल कैंसिल आउट, तो जी एम 2gm डिवाइडेड बाय आर, तो 2 and 2 will cancel out, gmm divided by r, gmm divided by r। यहां पर भी है gmm divided by r, लेकिन डिवाइडेड बाय 2 भी है, डिवाइडेड बाय 2 भी है, तो ये बन जाएगा ट्वाइस के ई, gmm by r बन जाएगा ट्वाइस के ई, 2 को ऊपर लेके, सो दिस मींस काइनेटिक एनर्जी फॉर एस्केपिंग इज ट्वाइस के ई। सो आपको काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी डबल बनानी है। अब हमें क्वेश्चन क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली एस्केप फ्रॉम इट। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट नाउ, दिस इज इंपॉर्टेंट नाउ। 2 ke इज नॉट योर आंसर, और वैसे ऑप्शंस में भी नहीं है। वैसे अगर नीट में आएगा तो ये वाला भी ऑप्शंस में होगा। ओके, पहले ही इसके पास ke काइनेटिक एनर्जी है, एस्केप होने के लिए कितनी चाहिए? ट्वाइस ke, तो आपको कितनी काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी? पहले ही इसके पास ke है काइनेटिक एनर्जी, एस्केप होने के लिए काइनेटिक एनर्जी ट्वाइस ke चाहिए, तो आपको कितनी सप्लाई करनी पड़ रही है? काइनेटिक एनर्जी टू बी सप्लाइड इज रिक्वायर्ड माइनस जो पहले से ही है, दैट इज सिंपली ke, सो इट नीड्स एन एडिशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ke टू एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ फील्ड। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका आंसर नहीं है, दिस इज सिंपली द टोटल काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड, टोटल काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड, उसमें ke इसके पास पहले से ही है, तो सब्ट्रैक्ट कर लें, तो ke इसके पास एडिशनल आनी चाहिए काइनेटिक एनर्जी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, 29। The ratio of the radii of the planets P1 and P2, the ratio of the radii of the planets P1 and P2 is A. The ratio of their acceleration due to gravity is B. The ratio of the escape velocity from them will be. Okay. Now, escape velocity का formula in terms of acceleration due to gravity. In terms of acceleration due to gravity. Escape velocity in terms of acceleration due to gravity is 2gr. ये आपको पता होना चाहिए. Okay, 2gr. Okay, now ratio हमें बताना है, तो escape 1 divided by escape velocity 2. Escape 1 divided by escape velocity 2. Directly related to g, under root of g, directly related to under root of r, तो ratio बन जाएगा g1 divided by g2 into r1 divided by r2 root के अंदर. So this implies v1 by v2 is equal to under root of g1 by g2. What is the ratio of acceleration due to gravity? Is b. What is the ratio of the radii? A. So into A. So under root of AB. Under root of AB. Option 2. Okay. Option 2. Let's move on to the next chapter. इस बार आपका पेपर आसान हुआ है, काफी आसान था. The escape velocity from the Earth's surface is v. Escape velocity from the Earth's surface is v. The escape velocity from the surface of another planet having a radii 4 times the radii of Earth and the same density. तो आपका फॉर्मूला होना चाहिए in terms of radius and density first. Okay, radius and density. So हमारे पास फॉर्मूला है v escape is equal to under root of 2gm divided by r. अब in terms of density क्या बन जाएगा? Under root of 2g divided by r. A mass is volume into density. So volume 4 by 3 pi r cube into density rho. एक r cancel out होगा. I don't care about the other things. Rest is all constant. So VE is
एक आर कैंसिल आउट होगा तो आर स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होगा तो वी ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. रेस्ट एवरीथिंग इज कांस्टेंट. ओके, रेस्ट एवरीथिंग इज रो. रिमेंबर डेंसिटी भी सेम है, सेम मास डेंसिटी, सेम डेंसिटी है. तो जी टू आर तो नहीं, 4/3 पाई रो सब कांस्टेंट है. आर क्यूब बाय आर इज आर स्क्वायर, उसका रूट कैंसिल आउट होगा तो आर. सो वी ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. सो अगर प्लैनेट का रेडियस 4 टाइम्स है तो उसकी वेलोसिटी, इसके वेलोसिटी भी 4 टाइम्स बन जाएगी. सो 4 टाइम्स वी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, रेडियस 4 टाइम्स बन गया, इसकी वेलोसिटी भी 4 टाइम्स बन जाएगी. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. 31. Okay, 31. Figure shows two shells of masses m1 and m2. The shells are concentric, at which point a particle of mass m shall experience zero force inside both of them. Inside both of them, force will be zero. Okay, inside the shell force zero होता, outside it behaves like a particle at the center. यहां पर होगा तो दोनों स्फीयर जो है वो पॉइंट पार्टिकल बिहेव करेंगे एट द सेंटर, तो दोनों के वजह से फोर्स आएगा. यहां पर अगर होगा तो इसके वजह से m1 शेल के वजह से तो फोर्स नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर है. m2 के वजह से फोर्स होगा क्योंकि इट स्टिल लाइंग आउटसाइड इट, तो m2 के वजह से फोर्स होगा. लेकिन जब पूरा अंदर होगा, दोनों के अंदर होगा, तो ना ही m1 के वजह से फोर्स होगा ना ही m2 के वजह से फोर्स होगा. सो दैट इज पॉइंट डी. और पॉइंट डी जरूरी नहीं है कि सेंटर पे हो, इट कैन बी एनीवेयर इनसाइड इट, इनसाइड बोथ ऑफ देम. डी. सो ऑप्शन 4. ऑप्शन 4. So let's move on to the next one. There are two bodies of mass 100 kg and 10,000 kg separated by a distance of 1 meter. At what distance in meter from the smaller body the intensity of the gravitational field will be? ऐसा ही क्वेश्चन एग्जैक्टली हमने पहले किया था, उसके वैल्यूज इसके वैल्यूज लेकिन डिफरेंट है. सो लेट्स टेक दिस मास m, दिस मास कैपिटल M, ये स्मॉल m, ये कैपिटल M. फिलहाल मैं जनरल लेता हूं. सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस से L. यहां पर कोई पॉइंट है जहां पर फील्ड जो होगा वो 0 के बराबर होगा. लेट्स सपोज एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द स्मॉलर वन. तो वहां पर ये बात तो हमने पहले डिस्कस की कि वहां पर फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होंगे. इसका फील्ड इसी के डायरेक्शन में होगा, उसका फील्ड उसी के डायरेक्शन में होगा. E1 E2, दिस इज पार्टिकल 1, दिस इज पार्टिकल 2. मैग्नीट्यूड वाइज सेम होने चाहिए. ओके, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होने चाहिए. सो E1 का मैग्नीट्यूड मस्ट बी सेम एज E2 का मैग्नीट्यूड. A magnitude is gm divided by r squared. So g small m divided by r के बदले में x squared इज इक्वल, दूसरे का g कैपिटल M डिवाइडेड बाय उसके डिस्टेंस जो है, दैट विल बी टोटल डिस्टेंस L माइनस दिस x, ये वाली डिस्टेंस टोटल L माइनस दिस x, तो L माइनस x स्क्वायर. g एंड g गोज टू डॉग, सो L माइनस x ऊपर, L माइनस x डिवाइडेड बाय वहां पर पहले से ही x है, स्क्वायर को मैं कॉमन ले रहा हूं, इज इक्वल स्मॉल m को नीचे लाते हैं, बन जाएगा कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m. Okay, capital M divided by small m. Okay, then let's move on. X को अलग अलग डिवाइड करते हैं. L divided by x minus 1, x by x is 1. स्क्वायर को यहां लेते हैं तो रूट ऑफ m divided by small m. So this implies L divided by x is equal minus 1 को यहां तो plus 1. So under root of m divided by small m plus 1. x को ऊपर, इस सब को नीचे. सो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय ये सारा नीचे अंडर रूट ऑफ m बाय m प्लस 1. तो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ले. ये तो जनरल फॉर्मूला आपके पास बन गया. ओके, सो दिस इज योर जनरल फॉर्मूला नाउ फॉर दिस सिचुएशन. फील्ड कहां पर 0 होगा. अब वैल्यूज जो है वो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. x इज इक्वल टू L. What is total separation between them? 1 meter. 1 meter. So 1 divided by under root of capital M divided by small m. Capital M divided by small m. दो zeros cancel out होंगे तो सिर्फ 100 बच जाएगा. Under root of 100 plus 1. So this is 1 divided by root of 100 is 10. 10 plus 1 is 11. So 1 divided by 11 meters. 1 divided by 11 meters. So option 3. 1 divided by 11 meters. Okay, so let's move on to the next one.
33. The height at which acceleration due to gravity decreases by 36, decreases by 36, not decreases to 36, decreases by, इतना कम हुआ है, इतना कम 36% कम हुआ है, तो कितना बचा हुआ होगा? 36 प्लस 4 64 बचा हुआ होगा, 64% अभी भी है. Of the value on the surface of earth, the radius of earth is r. Okay, height आपको निकालनी है. So g at height h is 36 से कम हुआ है, तो 64% of gs अभी भी बाकी है. ओके, अभी भी बाकी है. This is 64 divided by 100 into gs. Into gs. Cancellation 2 into 3, 2 into 2, 2 into 50, 2 into 16, 2 into 25. So GH is equal to 16 divided by 25 into GS. GH 16 divided by 25 into GS. अब हाइट हमने निकालनी है. अब GH वाला फॉर्मूला जो है वो यूज कर लें. ओके, GH वाला फॉर्मूला जो है वो यूज कर लें. GH किसके बराबर है? GH is GS divided by 1 plus H divided by R हो. रिमेंबर स्पेशल केस यूज नहीं करना है. स्पेशल केस जब h स्मॉल होता है उसके वजह से 5-10% मैक्सिमम 10%. यहां पर तो बहुत ज्यादा वेरिएशन है. So this is equal to 16 divided by 25 into GS. GS and GS goes to dogs. ये सारा ऊपर 25 यहां 16 नीचे. So 25 divided by 16 is equal to 1 plus H divided by R square. स्क्वायर को यहां तो रूट बन जाएगा. 25 रूट इज 5 डिवाइडेड बाय 16 रूट इज 4 is equal to 1 plus h divided by r. So this implies h divided by r is equal to 5 by 4 minus 1. So 5 minus 4 is 1 by 4 बच जाएगा. So this implies h is equal to r divided by 4. तो हाइट जो है that is r divided by 4, option 2. At a height of r divided by 4, acceleration due to gravity decreases by 36%, यानी कि decreases to 64%. Okay, इस बात का ख्याल रखना है. 34. Let's go to 34 now. Two particles of masses 2 kg and 3 kg are initially at rest at infinite separation. When released, find their relative velocity of approach when they are at a distance of 10 meter. Two particles, एक का मास 2 kg है, दूसरे का मास 3 kg है, are initially at rest at infinite separation. When released, find their relative velocity. So infinite separation पे ये यहां पर है, दूसरा यहां पर कहीं है. Then because of the attractive force ये नजदीक आएंगे, So mutual attractive force के वजह से नजदीक आ रहे हैं. तो वो तो इंटरनल फोर्सेस बन जाएंगे. मोमेंटम जो है टोटल मोमेंटम चेंज नहीं होगा. सो कुछ देर के बाद व्हेन दे आर एट अ सेपरेशन ऑफ 10 मीटर्स, सपोज ये जो 2 kg यहां से आ रहा है, इसकी वेलोसिटी जो है वो v1 के बराबर है, तो इसका मोमेंटम जो है वो बन जाएगा 2 into v1. और यहां से ये जो आ गया है इसकी वेलोसिटी सपोज v2 है, टुवर्ड्स ईच अदर है, तो इसका मोमेंटम जो है वो बन जाएगा मास इज 3 टाइम्स v2, अपोजिट डायरेक्शन में है. अब मोमेंटम मस्ट बी इक्वल, तभी जाके टोटल मोमेंटम 0 बन जाएगा. अपोजिट डायरेक्शन तो है ही, तो कैंसिल होके 0 बन जाएगा. 0 क्यों बनना चाहिए? क्योंकि इनिशियल 0 था टोटल, उसका अलग से 0, उसका अलग से 0, तो फाइनल भी 0 आना चाहिए. फाइनल इन दो का वेक्टर सम 0 के बराबर होना चाहिए. डायरेक्शन तो अपोजिट है ही, मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए. सो P1 का मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल टू P2 का मैग्नीट्यूड. So 2v1 must be equal 3v2. 2v1 must be equal 3 times v2. So v2 is equal 2 by 3 times v1. 2 by 3 times v1. Okay, now ये तो इनके अलग अलग हो गई. अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करते हैं. ओके, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करते हैं. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि इन्फिनिटी पे है. इन्फिनिटी रेफरेंस पॉइंट आपका होता है. फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ 2, इसका मास m1 2 के बराबर है. हाफ ऑफ 2
इंटू V1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ 3, दूसरे का मास 3 है, इंटू V2 स्क्वायर प्लस UF। अब डिस्टेंस जो है वो 10 मीटर है, तो माइनस G M 2 kg है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यहां पर। 2 इंटू 3 माइनस G M1 M2 डिवाइडेड बाय R, वो 10 के बराबर है, वो 10 के बराबर है। So this implies 2 and 2 will cancel out, V1 square plus 3 by 2 V2 square। अब V2 जो है that is 2 by 3 V1, लेकिन स्क्वायर के साथ, so 2 by 3 स्क्वायर, 2 into 2 divided by 3 into 3 into V1 स्क्वायर। V2 के बदले में 2 by 3 V1, लेकिन स्क्वायर है तो सबों को स्क्वायर मिल जाएगा। माइनस 3 into 2 is 6 G डिवाइडेड बाय 10। चलिए फिलहाल G को ऐसे ही रखते हैं। Okay, now 3 and 3 cancels out here, 2 and 2 cancels out here. V1, 1 plus 2 by 3. 3 plus 2 is 5. 5 divided by 3 into V1 square. 5 divided by 3 into V1 square is equal, remember दूसरा साइड 0 था, is equal, इसे वहां लेते हैं 6 into 6.67। ओके, G ऑप्शंस में ऐसे ही हैं। ओके, दैट्स गुड, G ऑप्शंस में ऐसे ही हैं। G डिवाइडेड बाय, ओके ये 2 इंटू 5 नहीं 3 डिवाइडेड बाय 5, 3 डिवाइडेड बाय 5। So this implies V1 square is equal to, V1 square is equal to, ये ऊपर जाएगा तो 3 स्क्वायर, नीचे आएगा 5 तो 5 स्क्वायर, so 3 by 5 स्क्वायर into G। This implies V1 is equal to 3 by 5 root of G, 3 by 5 root of G, ये V1। तो V2 किसके बराबर होगा? And V2 is equal to, वो है 2 by 3 V1, 2 by 3 V1, वो बन जाएगा 2 by 5 V root of G। 3 and 3 will cancel out, 2 by 3 तो 3 and 3 will cancel out, तो 2 by 5 root of G। So ये इंडिविजुअल वेलोसिटीज हैं, V1 और V2 इंडिविजुअल वेलोसिटीज हैं। अब रिलेटिव वेलोसिटी, सिंस दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो एड अप हो जाएगा सिंपली। सो V रिलेटिव, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव के लिए सिंपली एडिशन होगा। 3 by 5 plus 2 by 5, 3 plus 2 is 5, 5 by 5 is 1, तो रूट G खाली बच गया। ओके, रूट G। सो V रिलेटिव इज इक्वल टू रूट G, ऑप्शन 1, ऑप्शन 1। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। (34) now. So let's first erase this. Imagine a light planet revolving around a very massive star in a circular orbit of radius r with a period of revolution t. If the gravitational force of attraction between the planet and the star is proportional to r to the power minus 5 by 2, so gravitation वाला law change किया गया है, then t square is proportional to, so Kepler's third law के relating है. So you have a massive star here and a light planet revolving around it. लाइट प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड इट, रेडियस जो है वो r के बराबर है, वही डिस्टेंस बन जाएगी बिटवीन द टू। ओके, रेडियस r। सो इफ इट इज रिवॉल्विंग अराउंड विद द वेलोसिटी ऑफ v, देन रिमेंबर ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वन व्हिच प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपसे कहा गया है दैट इज प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर minus 5 by 2. सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज some constant into r to the power minus 5 divided by 2. Okay, r to the power minus 5 divided, ये gravitational force है, constant into this thing, some constant into this thing is equal to अब centripetal force that is mr omega square in terms of angular velocity हम निकालेंगे क्योंकि वहां से टाइम पीरियड निकालना ज्यादा आसान रहेगा. So this implies ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम आर को नीचे लाते हैं, सो के डिवाइडेड बाय एम आर, और ये आर टू द पावर minus 5 by 2 इसे नीचे लाते हैं तो आर टू द पावर plus 5 by 2 बन जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाय एम, 5 by 2 plus 1, 5 by 2 plus 1, 5 plus 2 is 7, 7 by 2, so r to the power 7 divided by 2. So omega
ओमेगा स्क्वायर है, सो 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, ओमेगा होता है 2 पाई डिवाइडेड बाई, लेकिन स्क्वायर है, सो 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई एम आर टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 2, 7 डिवाइडेड बाई 2। सो टी स्क्वायर को ऊपर लेते हैं, टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम 4 पाई स्क्वायर पहले से ही है, एम आर टू द पावर 7 बाई 2 को ऊपर लेते हैं, के को नीचे लाते हैं, एवरीथिंग इज कॉन्स्टेंट, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 2, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 2, ऑप्शन 2, ओके, ऑप्शन 2, आर टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 2। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, 36. A particle of mass m is projected with velocity v equal to k times ve, k less than 1, k is less than 1, that means the velocity is less than escape velocity, okay, velocity k is less than 1 तो escape velocity से ये काम बन जाएगा from the surface of earth, ve is the escape velocity, the maximum height above the surface reached by the particle is, okay, reached by the particle is, okay, so conservation of energy से सब कुछ मिलेगा, इसके वेलोसिटी जो है दैट इज अंडर रूट ऑफ 2gm डिवाइडेड बाय r, डिवाइडेड बाय r, तो पार्टिकल की लॉन्चिंग वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर है, k इंटू वी, k टाइम्स अंडर रूट ऑफ 2gm डिवाइडेड बाय r, 2gm डिवाइडेड बाय r। सो इस वेलोसिटी से आप पार्टिकल को लॉन्च कर रहे हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ये ऊपर जा रहा है, लेट्स सपोज यहां पर इसकी वेलोसिटी जो है वो 0 बन रही है, v इज इक्वल टू 0, it gains this height h। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करते हैं, ओके, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करते हैं, के आई प्लस यू आई इज इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ, के आई हाफ ऑफ एम मास ऑफ द पार्टिकल एम स्मॉल एम इंटू वी स्क्वायर तो ये स्क्वायर, तो के स्क्वायर, बाकी का स्क्वायर एंड रूट विल कैंसिल आउट, तो 2gm डिवाइडेड बाय आर, 2gm डिवाइडेड बाय आर प्लस यू आई ग्राउंड पे माइनस, रिमेंबर फॉर्मूला है माइनस gm डिवाइडेड बाय आर, तो ग्राउंड पे डिस्टेंस तो कैपिटल आर है, माइनस gm डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, माइनस gm डिवाइड बाय आर वाला फॉर्मूला, के एफ 0 के बराबर है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी अगेन माइनस gm डिवाइडेड बाय आर के बदले में r plus h, this h is what you had to find out, okay, this h is what you had to find out, okay, so let's move on, okay, m and m is everywhere, g and g is everywhere, capital M is everywhere, anything else, r लेकिन यहां पर है r plus h, तो ये तो नहीं रहेगा, so let's see what we have here, 2 and 2 will cancel out in this case, k square divided by r minus 1 divided by r is equal to minus 1 divided by r plus h, minus 1 divided by r plus, so just massaging this equation you'll get h, so let's see what we have. ओके, के स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय आर को कॉमन लेते हैं, ये बन जाएगा के स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू माइनस 1 बाय आर प्लस एच, माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर प्लस एच, माइनस 7 में है, ओके, माइनस 7 में है, आर प्लस एच को यहां लाते हैं, आर प्लस एच डिवाइडेड बाई ये आर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 1 को नीचे लाते हैं, वहां पर माइनस है तो आई राइट इट लाइक दिस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस के स्क्वायर, माइनस साइन एब्जॉर्ब हो गया, 1 माइनस के स्क्वायर, आर को अलग अलग डिवाइड कर लें, बन जाएगा 1 प्लस एच डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस के स्क्वायर, दिस इंप्लाइज h डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई के स्क्वायर, ये 1 वहां तो माइनस 1, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, h divided by r is equal 1 plus minus is minus 1, minus is plus k square divided by 1 minus k square, minus 1 plus 1 cancels out, so h is equal to k square divided by 1 minus k square into r. Okay, so once आपको formula पता है, you can play with the equation, okay, you can play with the equation, h height is k square divided by 1 minus k square times r,
k square divided by, do we have it anywhere? K square divided by 1 minus k squared into r. So option 4, k square divided by 1 minus k square into r. ये option है, option 4. Okay, option 4. Okay, so let's move on to the next one. 37. The rotation of Earth having radius r about its axis speeds up to a value such that man at latitude 60 degrees feels weightless. Okay, feels weightless. The duration of the day in such a case is. Okay, so this is Earth, this is the equator, latitude here 60 degrees. वेटलेसनेस के लिए वहां पर g जो है वो 0 बनना चाहिए. ओके, g जो है वो 0 बनना चाहिए. g एट लैटिट्यूड लैम्डा इज g माइनस r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा. अब g जो है वो 0 कब बनेगा? जब ये दो बराबर होंगे. बीच में माइनस साइन है, जब ये दो बराबर होंगे तभी जाके 0 बन जाएगा. सो दिस इंप्लाइज फॉर वेटलेसनेस, हमें क्या बताना है, निकालना है ड्यूरेशन ऑफ द डे. सो g इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा. ओमेगा से फिर हम टाइम पीरियड निकालेंगे, वहीं से दिन की ड्यूरेशन मिल जाएगी. सो g इज इक्वल r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा. कॉस ऑफ 60 कॉस ऑफ 60 1/2, तो 1/4 बन जाएगा. g ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4. सो दिस इंप्लाइज g ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, नॉट r divided by 4. So g is equal to r divided by 4. ओमेगा होता है 2 pi divided by t. ओके, 2 pi divided by t. तो स्क्वायर है तो 4 pi स्क्वायर divided by t स्क्वायर. ओके, 4 pi स्क्वायर divided by t स्क्वायर. 4 and 4 cancels out, तो g is equal to r pi स्क्वायर divided by t स्क्वायर. t स्क्वायर को ऊपर लाते हैं is equal to pi square r divided by g. So this implies t is equal to pi का square and root will cancel out, under root of r divided by g. So t is equal to pi times under root r divided by g. Pi times under root r divided by g. Option 4. Okay, option 4. Okay, so let's go for this one now. 38. A planet revolves around the sun in elliptical orbit. Then okay, तो 4 स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना है. नोट कर लें ऑल ऑफ द अबो, या ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है. तो जो भी आपको सामने आएगा जो ठीक स्टेटमेंट हो वो वही करेक्ट ऑप्शन रहेगा. द फोर्स बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट रिमेन्स कॉन्स्टेंट. नहीं, इलिप्टिकल ऑर्बिट है तो डिस्टेंस डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट. इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये सन यहां पर एट वन ऑफ द फोक है, ये प्लैनेट है, यहां पर सबसे ज्यादा डिस्टेंस है, यहां पर डिस्टेंस कम है, यहां पर सबसे कम डिस्टेंस है. तो डिस्टेंस चेंज हो रही है, दैट मींस फोर्स भी चेंज होगा. फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो भी चेंज होगा. सो इट्स नॉट ए कांस्टेंट फोर्स, इट्स नॉट ए कांस्टेंट फोर्स. अगर सर्कुलर ऑर्बिट होता तब को फोर्स जो है वो कांस्टेंट रह जाता. टोटल फोर्स का मैग्नीट्यूड तब भी. Total energy of sun planet earth sun planet system remains constant. Conservation of energy. सन और प्लैनेट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर इन्वॉल्व. सन प्लैनेट पे फोर्स लगा देगा, प्लैनेट सन पे फोर्स लगा देगा. कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं तो उनके वजह से कोई डिसिपेशन ऑफ एनर्जी नहीं होगा. टोटल एनर्जी विल बी कंजर्व. टोटल एनर्जी विल बी कंजर्व. लीनियर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट रिमेन्स कंजर्व. नो, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व्ड. लेकिन जब आप पूरे सिस्टम को कंसिडर कर लेंगे, सन को भी और प्लैनेट को भी, या पूरे सोलर सिस्टम को, प्लैनेट का अलग से मोमेंटम इज नॉट कांस्टेंट. यहां पर जब प्लैनेट मूव कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन ये है, यहां पर जब मूव कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन ये है. तो कम से कम डायरेक्शन तो चेंज हो रही है. तो मोमेंटम इज नॉट कांस्टेंट. मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज हो, मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है. मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है. यहां का एपिहीलियन का अगर आपको याद हो, यहां पर स्पीड जो है वो सबसे ज्यादा होती है. ओके, सबसे ज्यादा होती है, और यहां पर स्पीड कम होती है. तो स्पीड ज्यादा है तो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा. यहां पर स्पीड कम है तो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड भी कम होता है. तो डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है, लेकिन अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड भी कंसिडर कर लेंगे वो भी चेंज हो रहा है. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्लैनेट अबाउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लैनेट अबाउट सन रिमेन्स कांस्टेंट. नहीं, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट नहीं रहती है. यहां पर स्पीड मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, वहां पर स्पीड मिनिमम है तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी. सो दिस इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन, जो सेकंड ऑप्शन जो है. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ.
Two identical, okay, let me erase it first. Two identical satellites are identical, so mass दोनों का same होगा, okay, mass दोनों का same होगा, are moving around the earth in circular orbits at height 3r and r. तो height 3r और r है respectively, where r is radius of earth. The ratio of their total energy is, energy of a satellite, अगर आपको याद हो, that is minus gmm divided by 2r. R is radius of the satellite orbit, okay, radius of the satellite orbit. Okay, now यहां पर आइडेंटिकल सैटेलाइट्स हैं तो दोनों का मास सेम है, m मास ऑफ अर्थ है, दोनों के लिए सेम है, g एक्स ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, वो भी सेम है, 2 सेम है, माइनस साइन भी सेम है दोनों के लिए. तो इस सिचुएशन के लिए E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. इस सिचुएशन के लिए रिमेंबर माइनस साइन इज देयर, वो दोनों सिचुएशंस के लिए माइनस साइन है, तो इसलिए उसको कंसिडर हम यहां नहीं कर लेंगे, फाइन, क्योंकि एनीवेज जब आप रेशियो लेंगे तो कैंसिल आउट होगा. So this implies E is equal to, yeah, let's write it this one this way. Two identical satellites, okay, E1 divided by E2 is equal to R2 divided by R1. R2 inverse proportionality है, तो ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाएगा. अब 1/2 है, यहां से 2/1 बन जाएगा ना. R2 ये तो फर्स्ट पहले कहा गया, तो दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकेंड वन. R2 जो है, हाइट इज कैपिटल R, हाइट इज कैपिटल R, तो रेडियस जो है वो भी R के बराबर है. दिस इज अर्थ, सपोज दिस इज द सैटेलाइट ऑर्बिट, यहां पर मूव कर रहा है, तो यहां से यहां तक R है, यहां से यहां तक H है, तो आपका रेडियस ऑफ द सैटेलाइट जो है दैट बिकम्स R प्लस H. अब हाइट जो है वो भी R ही के बराबर है, H इज इक्वल टू R दूसरे वाले के लिए, तो R प्लस R इज ट्वाइस R डिवाइडेड बाय, अब पहले वाले सैटेलाइट के लिए 3R हाइट है, तो R प्लस 3R इज 4R. R and R cancels, 2 into 2. So E1 divided by E2 is equal to 1 divided by 2. So 1 is to 2. 1 is to 2, option 2. Okay, option 2. So let's move on to the next one. 40. A body of mass m is projected at an angle of theta. Body of mass m is projected at an angle of theta with horizontal, with an initial velocity u. The average power of the gravitational force over the whole time of flight is. Now, आप यहां पर लॉन्च कर रहे हैं, यहां पर ये वापस आ रहा है, ओवर द होल टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट कौन सा वाला है? जब इट रिटर्न्स बैक टू द सेम लॉन्चिंग हाइट. यहां पर जब ये वापस आ रहा है, सेम लॉन्चिंग हाइट पे वापस आ रहा है, तो यहां पर आपकी वेलोसिटी u थी, एंगल थीटा था. ओके, ना mg जो है दैट इज थ्रो आउट डाउनवर्ड इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस. तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होगा दैट विल बी mg इनटू sy, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन. डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन डज नॉट मैटर, क्योंकि ग्रेविटी हमें लेनी है. वर्क डन बाय ग्रेविटी में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है उससे फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो फोर्स खुद वर्टिकल है. अब पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट में इट रिटर्न्स बैक टू द सेम लॉन्चिंग हाइट, तो वाई पोजीशन जो यहां पर थी वही वाई पोजीशन वापस आ रही है, तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 के बराबर है फॉर ए कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट. या अगर कोई और पॉइंट आप लेंगे तब तो ऑब्वियसली वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ होगी, लेकिन जब ये वापस यहां पर आ रहा है, एग्जैक्टली सेम लॉन्चिंग हाइट पे आ रहा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 के बराबर है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी 0 के बराबर होगा. ऊपर जाते जाते जितना नेगेटिव वर्क हुआ होगा उतना ही नीचे आते आते पॉजिटिव वर्क हुआ होगा, विद द रिजल्ट टोटल वर्क डन जो है बाय ग्रेविटी दैट विल बी 0. वर्क डन बाय ग्रेविटी इज 0, तो पावर जो है वो भी, एवरेज पावर जो है वो भी 0 के बराबर होगा. एवरेज पावर टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. ओके, वर्क डन 0 है तो एवरेज पावर जो होगा वो भी 0 के बराबर होगा. ऑप्शन 4. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ. 41. Okay, let's go to 41. A uniform chain of length 2 meters is kept on a table such that a length of 60 centimeter hangs from free edge of the table. The total mass of the chain is 4 kg. The work done in pulling the entire chain on the table is. So this is some table here. इस टेबल के ऊपर चेन है. So there is some chain.
चेन का कुछ पार्ट जो है वो हैंग कर रहा है। ओके, चेन का कुछ पार्ट जो है वो हैंग कर रहा है। कितना पार्ट हैंग कर रहा है? 60 सेंटीमीटर्स। ओके, 60 सेंटीमीटर्स। तो यहां से यहां तक 60 सेंटीमीटर्स है। यूनिफॉर्म है। ओके, यूनिफॉर्म है। टोटल लेंथ जो है वो 2 मीटर्स है, यानी कि 200 सेंटीमीटर्स। तो यहां वाला पार्ट जो होगा दैट विल बी, वैसे उसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, 60 सेंटीमीटर्स हैंग्स फ्रॉम द। टोटल मास जो है वो 4 kg है। टोटल मास 4, ये हमारा चलिए ठीक है, टोटल मास 4 kg है। सो व्हाट इज द मास ऑफ द हैंगिंग पार्ट? व्हाट इज द मास ऑफ द हैंगिंग पार्ट? मास पर यूनिट लेंथ जो होगा, टोटल लेंथ हमें यहां पर चाहिए, मास पर यूनिट लेंथ जो होगा दैट विल बी 4 डिवाइडेड बाय 2 मीटर्स। मैं लिखूंगा 200 सेंटीमीटर्स, क्योंकि वहां पर सेंटीमीटर्स फिर से कन्वर्जन करना होगा, तो मैं पहले ही करता हूं। 4 डिवाइडेड बाय 200, सो दिस इज 4 into 5 is 20, 1/50 kg पर सेंटीमीटर, 1/50 kg पर सेंटीमीटर। तो इसका मास कितना होगा? मास पर यूनिट लेंथ इज 1/50, पर एक यूनिट लेंथ का मास 1/50 है। 2 यूनिट लेंथ का कितना होगा? ट्वाइस। 3 यूनिट लेंथ का कितना होगा? 3 टाइम्स। सो लेंथ से मल्टीप्लाई करना है। यहां की लेंथ 60 सेंटीमीटर्स है। सो मास ऑफ हैंगिंग पार्ट इज 1 डिवाइडेड बाई 50 इंटू इसकी लेंथ 60 सेंटीमीटर्स। अब सेंटीमीटर कैंसिल आउट होगा, लेट्स नॉट मेंशन द यूनिट। 0 and 0, so this is 6 divided by 5. 6 divided by 5. So इसका मास 6 divided by 5 है। Okay, now work done by gravity है, हाँ, work done by you in pulling the entire chain. Work done by you mention नहीं है, that means work done by the applied force. Center of mass is somewhere here. ये सेंटर ऑफ मास इसके बिल्कुल मिड पॉइंट पे होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म चेन है। दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट कि ये यूनिफॉर्म चेन है। तो सेंटर ऑफ मास और टेबल तक जो हाइट है दैट इज 30 सेंटीमीटर्स। मिड पॉइंट पे टोटल 60 है, तो ये 30 सेंटीमीटर्स होगा। अब इसको आपने पुल करना है, पूरी चेन को ऊपर लेना है टेबल पे। जब आप पूरी चेन को ऊपर लेंगे, सो व्हाट इज द हाइट जिसके थ्रू सेंटर ऑफ मास ऊपर जा रहा है? 30 सेंटीमीटर्स। सेंटर ऑफ मास की हाइट 30 सेंटीमीटर से इंक्रीज हो रही है। जब आप पूरी चेन को ऊपर लाएंगे तो ये जो सेंटर ऑफ मास है वो टेबल की हाइट पे ही होगा। तो सेंटर ऑफ मास की हाइट इंक्रीज हो रही है बाय 30 सेंटीमीटर। Center of mass की हाइट इंक्रीज हो रही है by 30 सेंटीमीटर। So what is the work done? Work done by you, work done by applied force is delta U. अगर वर्क डन बाय ग्रेविटी होता तो माइनस डेल्टा यू, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स है तो प्लस डेल्टा यू। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सिंपली mgh। m मास जिसको आप ऊपर ले रहे हैं, यानी कि ये वाला मास हैंगिंग पार्ट का मास। g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। h हाइट कितनी इंक्रीज हो गई है? किसकी हाइट कितनी इंक्रीज हो गई है? सेंटर ऑफ मास की। ओके, सेंटर ऑफ मास की। तो मास तो 6 डिवाइडेड बाय 5 है, इंटू g इज 10, इंटू हाइट जो है वो 30 सेंटीमीटर्स है, तो 30 डिवाइडेड बाय 100 मीटर्स में। सो सब कुछ अब SI सिस्टम में आ गया। ओके, वर्क डन का यूनिट भी SI सिस्टम में होगा। सो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज यहां पर 0 and 0, 10 and 10, 6 into 3 is 18 divided by 5, which is 5 into 3 is 15. So 0.5 into 6 is 30. So 3.6 joules. सब कुछ SI सिस्टम में था, तो इसका यूनिट भी SI सिस्टम में आएगा। 3.6 joules, option 3. 3.6 joules, option 3. Okay, so let's move on to the next one, 42. A truck and a car moving with the same kinetic energy. दोनों की kinetic energy जो है वो same है, दोनों की kinetic energy same है, are brought to rest by the application of, okay, this must be by the application of brakes which provide equal retarding force. This is important. Retarding acceleration same नहीं है, retarding force same है, retarding force same है, retarding acceleration same नहीं है। So retarding force होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ट्रक का मास ज्यादा होगा तो उसकी एक्सेलरेशन ऑब्वियसली फिर कम होगी। सो रिटार्डिंग फोर्स इज सेम, इसका ख्याल रखना है। विच ऑफ देम कम टू रेस्ट इन ए शॉर्टर डिस्टेंस। ओके, इन ए शॉर्टर डिस्टेंस कौन रेस्ट पे आएगा? स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वही हुआ, कमिंग टू रेस्ट इज स्टॉपिंग डिस्टेंस इज इन्वॉल्व। u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। तो ये स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला जो है दैट इज इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ना ही हमें इनिशियल वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन है, ना ही हमें एक्सेलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन है, बट व्हाट वी नो इज
काइनेटिक एनर्जी इज सेम। सो इनिशियल वेलोसिटी को मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लूंगा, और एक्सेलरेशन नहीं, हमें फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है तो एक्सेलरेशन को फोर्स में कन्वर्ट करना होगा। सो व्हाट आई विल डू इज 1 डिवाइडेड बाय एम ए। सो मैंने m से डिवाइड किया, मैं m से मल्टीप्लाई भी कर लूंगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 m u स्क्वायर। सो m से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। सो दिस इज इक्वल, अब ये तो काइनेटिक एनर्जी है, डिवाइडेड बाय एम ए तो फोर्स है, रिटार्डिंग फोर्स इन दिस केस। सो स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है दैट इज काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय फोर्स, काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय फोर्स। ओके, अ ट्रक एंड अ कार विद द सेम काइनेटिक एनर्जी, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, विल प्रोवाइड इक्वल रिटार्डिंग फोर्स भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस जो होगी वो सेम होगी। दैट मीन्स दे विल स्टॉप इन द सेम डिस्टेंस, they'll stop in the same distance. Both will travel the same distance before coming to rest. Option 3. Okay, option 3. So let's move on to the next one. 1 milligram of matter is converted into energy. The energy released will be 1 milligram है, इसका ख्याल रखना है। 1 मिलीग्राम, मिली को कन्वर्ट करने के लिए 10 to the power -3, लेकिन ग्राम्स अभी भी है। फिर ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए फिर से 10 to the power -3, अब ये केजी में आ गया। सो दिस इज 10 to the power -6 केजी। सो इतने मास को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? प्रोबेबली द मोस्ट फेमस फॉर्मूला इन फिजिक्स, arguably the most famous formula, E is equal to mc squared. E is equal to mc squared. E is equal to m तो 10 to the power -6 है, into c squared. C is speed of light, 3 into 10 to the power 8, लेकिन स्क्वायर है तो फिर से 3 into 10 to the power 8. So 3 into 3 is 9 into 10 to the power 8 plus 8 minus 6 is 2, 2 plus 8 is 10. So 9 into 10 to the power 10 जूल। सब कुछ ऐसा सिस्टम में था तो ये भी ऐसा सिस्टम है। 9 into 10 to the power 10, ये होना चाहिए 10 to the power 10 joules. So 9 into 10 to the power 10 joules. Okay, so 43. Let's move on to the next one. 44. The potential energy for a conservative system is given by U is equal to ax squared minus bx, where a and b are positive constants. The force governing the system is, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला दिया है, फोर्स कैसे निकालेंगे? यू हैव दिस इक्वेशन, F इज इक्वल माइनस डी यू बाई डी एक्स। इसी पेपर में हमने पीछे कोई क्वेश्चन था उसमें भी ये यूज किया था। सो माइनस डी यू बाई डी एक्स, सो माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ यू के बदले में ए एक्स स्क्वेयर्ड माइनस बी एक्स। सो इट बॉइल्स डाउन टू डिफरेंशिएशन नाउ। सो एफ इज इक्वल माइनस इसके डिफरेंशिएशन 2ax माइनस बी, 2ax माइनस बी, माइनस से मल्टीप्लाई करें तो b माइनस 2ax. So this is the force involved, b minus 2ax. b minus 2ax is option 3. Okay, b minus 2ax is option 3. So let's move on to the last one, to the much awaited one. A stationary particle explodes into two particles of masses m1 and m2. Okay, masses m1 and m2, which move in opposite directions with velocities v1 and v2. The ratio of their kinetic energies E1 by E2 is, E1 by E2 is, एक जो है यहां जाएगा with momentum p1 equal to p, जो होगा m1 v1. दूसरा पार्टिकल यहां जाएगा विद मोमेंटम p2, जो अगेन मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है, m2 v2, ये m1 v1 m2 v2। सेम मैग्नीट्यूड वाइज सेम क्यों होना चाहिए? क्योंकि इनिशियली रेस्ट में स्टेशनरी पार्टिकल तो रेस्ट में, तो इनिशियल मोमेंटम जीरो होगा, बिफोर एक्सप्लोजन मोमेंटम जीरो होगा, तो आफ्टर एक्सप्लोजन टोटल मोमेंटम जीरो ही होना चाहिए। वो कैसे होगा? जब ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे और मैग्नीट्यूड वाइज सेम होंगे। तो m1 v1 is equal to m2 v2, या p and p are same, p and p are same. So we are asked to find out ratio of the kinetic energies, Now kinetic energy in terms of momentum is p square divided by 2m. p तो दोनों के लिए सेम, 2 तो यूनिवर्सल कांस्टेंट, तो kinetic energy is inversely proportional to m.
Kinetic energy is inversely proportional to m. So this implies k1 divided by k2 या E1 divided by E2, इसने E से रिप्रेजेंट किया, is equal to m2 divided by m1. m2 divided by m1. Option number 4. m2 divided by m1. Okay, so this was the last one. I hope आपने अच्छा किया होगा. Okay, work hard, work hard, work hard. Practice, practice, practice. That's all you can do. Practice, practice, practice. बहुत ज़्यादा practice. Okay, all the best for your future exams.